Hello students, welcome to Neetu Agarwal classes. Today we are going to discuss and understand depreciation, which is a very important topic to know about. So let's start it. Depreciation. Depreciation means any reduction in the value of an asset, any reduction in the value of an asset with the passage of time and due to the use of it. राइट इट मीन्स लाइक आप डेप्रिसिएट कोई भी नई चीज़ आप खरीदते हो, सपोज आपने यूज़ भी नहीं करी है, ओके, इवन देन इट्स वैल्यू गोज डाउन इफ़ यू आर सेलिंग आउट. आप उसे नेक्स्ट टाइम मार्केट में उसे बेचने जाओ, अगर कहीं पे भी किसी को भी बेचो, अगर कि सपोज आपने वो चीज़ यूज़ ही नहीं करी है तो भी आपको उसके डायरेक्ट फुल प्राइस नहीं मिलेंगे. There must be a reduction in this price, right? So depreciation is that value of reduction in the value of an asset by the passage of time or due to use and wear and tear, right? हम जब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो घिसती हैं, टूट फूट होती है, मशीन्स हैं, फर्नीचर है, वट एवर वी आर बाइंग फॉर द बिजनेस फॉर होम यूज ऑल्सो, देयर इज अ depreciation always. Depreciation is applicable on depreciation is applicable on tangible assets, right, which we can see, which we can touch. Okay, so there are three types of depreciation actually: depreciation, amortization and depletion. ये terms तो आपने सुनी होंगी. depreciation हम commonly use करते हैं, but amortization and depletion, these are also important terms to understand. Depreciation, we all know what is depreciation now, but it is only limited to the tangible assets, or you are taking an example of plant and machinery, furniture, those things which you can touch, right, which you can use it directly. Okay, but amortization, what is the difference between depreciation and amortization? Amortization is applicable to intangible assets. Now what are intangible assets? Like the example we can say goodwill, right? You cannot touch it, you cannot directly use it, you can use the repo of your firm, okay, you can influence the customers through this, but you cannot directly sell goodwill to another person, right? We are calculating or reevaluating it at the time of revaluation, right, and admission of the partner. So this is an intangible assets which you cannot touch or feel, or which you cannot directly see, right? There are intellectual rights like copyright, patents. Okay, so these are all intangible assets, and in the any reduction in these kinds of assets value is called amortization. Okay, so we call it officially we are calling it amortization, right? And third one is the depletion. Okay, deplete होना, कम होते जाना. ओके, इट मीन्स सी, अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो एक मशीनरी है हमारे पास, तो सपोज करो वो यूज़ करने से उसकी वैल्यू कम हो रही है, या उसमें कुछ रिपेयर आ गई, ठीक है, टूट फूट हो गई, वो बात एक अलग है. बट ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं और वो कम होती जा रही है, राइट, ऐसा तो नहीं है. बट डिप्लीशन इज एप्लीकेबल टू दोज एसेट्स विच आर गेटिंग रिड्यूस्ड बाय यूजिंग दैट, राइट. एक सिंपल सा एग्जांपल लें, आप एक पेन यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें रिफिल, राइट, रिफिल जैसे जैसे आप इसको यूज करते हैं, रिफिलिंग जो है कम होती जाती है, इंक कम होती जाती है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिप्लीशन. ओके, व्हेन यू आर यूजिंग दीज एसेट, when you are using this asset, it is getting depleted. Okay, so naturally at a certain point of time its value is become zero. Okay, in case of depreciation and amortization, there can also be options where your assets is not getting the zero value at the last in the life whole time, right? But depletion is a case where you have definitely
किसी न किसी सर्टेन टाइम पे आपके एसेट की वैल्यू ज़ीरो होने ही वाली है। एग्जाम्पल्स कैसे होंगे इसके? मेजर और एनी चार्ज, जैसे कि कोल स्टॉक, राइट, कोयला जब यूज़ कर रहे हैं या खदानें हैं वहाँ से मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, सो पेट्रोल है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जाके वीट है, राइस है, एनी काइंड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिनिश हो रहे हैं धीरे धीरे, राइट। एंड ये है क्या? वही चीज़ कि इसी के अगेंस्ट जो भी चार्ज है उसको यूज़ करने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए, इसीलिए इन वाले एसेट्स को हम क्या नाम देते हैं? दीज आर कॉल्ड वेस्टिंग एसेट्स। ओके, वेस्टिंग एसेट्स क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं दे आर गॉट रिड्यूस्ड। ओके, एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट हियर, डेप्रिसिएशन इज नॉट एप्लीकेबल टू लैंड। ओके, so it is not applicable to land. Why? Because depreciation is applicable to those assets which are getting reduced in their value, okay, due to use. But land is the only asset which cannot get devalued. Okay, आप उस पर क्या कर सकते हो? एक बार आपने खेती करी, आपने कुछ और बना दिया, वहाँ पे कुछ उगाया, फिर उसको फर्टाइल किया थोड़ा टाइम, फिर उस पर कुछ और वहाँ पे नेक्स्ट खेती के लिए उस पर कुछ उगाया, राइट। सो इसी तरह बिल्डिंग्स, अगर कोई बिल्डिंग बनाई आपने, वो थोड़े टाइम बाद उसके एग्जॉस्ट हो गई या खराब हो गई, तो दोबारा उसको तोड़ के बनाया जा सकता है। ओके, सो लैंड एक ऐसा एसेट है जो कभी, जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती। सो इस पे कभी भी आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। ओके, ये एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू ऑलवेज, हमेशा इंक्रीज ही होती है, ठीक है, या तो इंक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी, डिप्लीट कभी भी नहीं होगी या डिक्रीज कभी भी नहीं होगी। ओके, क्लियर है अभी तक? अभी हमने जो जो चीज़ें करी हैं बिल्कुल क्लियर है। जैसे जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डेप्लीशन, एंड लैंड कैन नॉट बी डेप्रिशिएटेड एनी हाउ। ओके, सो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन हमने समझ लिया। यूज़ करते हैं, टाइम होता है, कोई चीज़ टेक्नोलॉजी अगर ऑब्सोलीट हो गई, पुरानी हो गई, ड्यू टू एक्सीडेंट कोई चोरी हो गई, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, या उसकी वजह से कोई भी तरीके से उसके डेप्रिशिएट हो सकती है वैल्यू, ठीक है। हम अकाउंटिंग में डेप्रिशिएट को क्यों कंसिडर करते हैं? क्यों? ताकि हम देखिए, अगर हमारी कोई, सपोज करो 1 लाख की हमारी कोई मशीनरी है, राइट, अगर हमने उसमें कोई टूट फूट आ गई, मशीनरी काम नहीं कर रही थी, तो हमारा उस पर सपोज करो 90,000 की उसकी वैल्यू रह गई, 10,000 की हमने उसमें रिपेयर्स कराई है, राइट। तो इस तरह से अगर हम उसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, जो उसमें खर्चा हो रहा है, तो इस खर्चे को हम कहाँ काउंट करेंगे, राइट। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हम जानने के लिए, सही हम मार्केट प्राइस जानने के लिए, जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस वहाँ पे बना रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी सही कॉस्ट, ठीक है, सही उसका एमआरपी डिसाइड करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम हर खर्चे को कंसीडर करें। ओके, सो किस लिए किया जाता है? टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, टू शो फेयर वैल्यू इन द बैलेंस शीट, राइट। वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द लेटर वीडियोज। टू नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट, टू डिसाइड द एमआरपी, right, to decide the fair profit margin in that, to fulfill legal restrictions, because क्योंकि हर एक एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन आपको लगाना चाहिए, एक फ्लैट रेट होता है उसके लिए, तो वो जो है टैक्स अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग या लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ज़रूरी होता है कि हमें उस पर डेप्रिसिएशन लगाना ही है। So these are the causes why we are using it for accounting purposes. There are two methods, SLM method, written down. We are calling it straight line method. Okay, and this second one is written down value method. In India, there are two methods we are fairly used for the depreciation purposes. Now let's understand some important terms to use for practical questions, like historical cost of an asset, right? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन असेट हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ अगर हम 1 लाख रुपए की लेकर आए हैं, सपोज करो हमने मार्केट से 1 लाख रुपए की परचेज़ की, हम उसको लेके आए, उसका खर्चा हमारा 500 रुपये हो गया, हमारे फैक्ट्री एरिया तक हमने जहाँ इंस्टॉल कराया, इंस्टॉलेशन का खर्चा हमारा 2,000 रुपये हो गया, तो क्या हम इस खर्चे को जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? और ऊपर से हमने उसी परचेज पे GST SGST भी पे किया है हमने,
तो उस खर्चे को हम जोड़ेंगे, या क्या ये सारी की सारी वैल्यू हम उसमें जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एसेट में, या हम इसमें से कुछ नहीं ऐसा जोड़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट थिंग देखिए, परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अगर सपोज करो आप 1,00,000 रुपये और 12,000 रुपये, ये 1,12,000 रुपये की आप मशीनरी खरीद के लाए हो, जिसमें से 12,000 रुपये जो है आपका जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी 6,000 ईच है। तो हम इसमें से क्या कंसीडर करेंगे? परचेज प्राइस वी विल कंसीडर ओनली 1,00,000, राइट। जीएसटी जो है हमारा जर्नल पर्पस के लिए होता है और हम उसको अलग से कंसिडर करते हैं, बट वी आर नॉट कैलकुलेटिंग इट फॉर द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन असेट। सो सिंपली एक्सक्लूड द जीएसटी फॉर द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन असेट। परचेज प्राइस प्लस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, राइट, प्लस फ्रेट। फ्रेट इट मीन्स कोई किराया अगर आपने लगाया है उसको लाने तक, ठीक है, एंड अदर कॉस्ट, कोई भी अदर कॉस्ट उसमें आती है, रिपेयर सपोज करो, और अदर कॉस्ट में कुछ भी आ सकता है इस तरह का, जैसे रिपेयर वगैरह हो सकती है। हो सकता है आपने कोई पुरानी मशीन खरीदी हो जिसको सही हालत में चलाने के लिए आपने उस पर कुछ रिपेयर्स करी हो, तो आपके लिए तो वही अल्टीमेटली मशीनरी का खर्चा ही हुआ, ओके। प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसको इंस्टॉल कराने का, लाइक आप सिंपली एक एसी भी खरीदते हो घर के लिए तो खुद इंस्टॉल उसको ना करके किसी से इंस्टॉल कराते हो, परफेक्ट उसके लिए फ्रेम बनवाते हो, तो दैट इज द इंस्टॉलेशन कॉस्ट। सो दिस will get us the, इसका जो भी सम होगा, ओके, राइट, सम ऑफ दीज कॉस्ट विल गिव अस द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन असेट, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो ये जो होती है हमारे पास कि एट द एंड ऑफ, सपोज करो, देखिए एक और चीज़ है यूजफुल एंड और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन असेट। एक्चुअली दिस इज एस्टिमेटेड. You cannot correctly say that this machine is last for 10 years or 50 years or for 12 years. You cannot say it perfectly. But yes, of course, you can forecast it, you can estimate it, right? So, उसके according हमारे पास life पता चल जाती है हमें asset की, we forecast that, and at the end of that life period, right? आप चाहे उसको कबाड़ी को दो, चाहे आप किसी उसमें मतलब बिल्कुल स्क्रैप करो उसको, या आप उसको रीसोल्ड कर दे रहे हो किसी भी लो वैल्यू पे, जिस भी वैल्यू पे वो रीसेल हो पा रही है, ठीक है, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू. कि एट द एंड ऑफ द at the end of the life of the asset, how much will you get from that? Okay, that is the scrap value. So legal provisions, like आपको वो क्या रेट उस पर रखना है, क्या आपको किस तरह से आपको सेट ऑफ कर सकते हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ capital expenditure and revenue, all that terms, right? So now we are come to the formula. आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लर्न रखना है. एनुअल डेप्रिसिएशन आपको कैसे निकालना है? सबसे पहले तो आपको ये हिस्टोरिकल कॉस्ट, राइट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट. जैसे मैं बताया आपको प्लांट, उसकी रिपेयर्स, कोई अगर तभी की तभी हमने करी है रिपेयर्स, ओनली देन रिपेयर्स विल बी काउंटेड, राइट. अदरवाइज अगर हम विद इन ईयर कोई रिपेयर उसमें करा रहे हैं 10-20 हज़ार की, 500 रुपये की, कुछ भी, देन इट इज नॉट काउंटेड इन दैट, बिकॉज क्योंकि वो जो है उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है. Okay, only capital expenditure is taken with this at the time of calculating historical cost of an asset, minus scrap value divided by number of years that is you estimated for its useful life. Okay, so here you get the annual depreciation. पूरे साल का कितना depreciation होगा आपका पता चल जाएगा. Then अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि rate of depreciation भी बताइए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर पूछता है तो आप क्या करेंगे? जो यहाँ पे आपने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला है वही आप यहाँ पे लिखेंगे. दिस इज द एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय दिस कॉस्ट ऑफ एसेट, राइट, नॉट दिस, बट बिफोर दिस व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड वी पुट हियर, मल्टीप्लाई बाय 100, देयर यू गेट द सम. ओके, there you get the rate of depreciation which you use according to this. Okay, so let us understand by a simple practical question. Calculate the amount of annual depreciation and rate of depreciation under straight line method for the following. अगर ये सिंगल ईयर के लिए पूछता है तो this is not considerable, right? So what is the question exactly? Purchased a second hand machine. ओके, सेकेंड हैंड मशीन हमने खरीदी है 96,000 के लिए. स्पेंट
spent 24,000 on its cartridge repairs and installation, right? See what I told you कि हम उसका अगर कार्टेज कोई उसको किराया लेकर आने तक का किराया, हमारे घर तक फर्नीचर मतलब हमारी फैक्ट्री तक, वर्किंग एरिया जो भी है हमारे, हमें जहाँ पे भी वो इंस्टॉल करना है वहाँ तक अगर लाने का कोई खर्चा है, दैट इज कॉल्ड कार्टेज. रिपेयर्स, इंस्टॉलेशन चार्जेस, दीज आर ऑल गोज इन विद दिस, राइट. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ उन्होंने बता दी है 4 years एंड स्क्रैप वैल्यू भी बता दी है 72,000. सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग. ओके, सो व्हाट वर, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एनुअल डेप्रिसिएशन, राइट. एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए. आप एक दो बारी प्रैक्टिस करोगे इजीली आपको लर्न हो जाएगा. हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ईयर्स, राइट. सो आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास है, स्क्रैप वैल्यू आपके पास है, बट यू नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एसेट. सो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में, ये आप क्या कहते हैं अलग से लिख लीजिएगा. वर्किंग नोट में आप इसकी कॉस्ट ऑफ एन एसेट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट, देन इट विल बी लाइक परचेज प्राइस, राइट. अगर देखिए यहाँ पे अगर हमें जीएसटी दिया होता तो हम उसको एक्सक्लूड कर देते ऑटोमेटिकली, बट यहाँ पे हमें जीएसटी कुछ नहीं दिया हुआ है, देन वी टेक इट एज अ होल. ओके, सो परचेज प्राइस हम लिख लेते हैं एक बारी. परचेज प्राइस प्लस रिपेयर दिस कॉस्ट, राइट. यू कैन से इट कार्टेज रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, राइट. सो परचेज प्राइस इज 96,000 प्लस ये इन्होंने टोटल करके हमें बता रखा है 24,000. ओके, देयर यू गेट 120,000. Okay, so this is the cost of our asset. Now we put in this formula again. Annual depreciation is equal to 120,000 minus scrap value. Scrap value is 72,000. Simply divided by 4 years, right? 4. So what we get here? Clear? We will get the annual depreciation. पूरे एक साल का depreciation हमारा इस पर क्या होने वाला है, 12,000. ओके, 12,000 रुपीज. नाउ अगर हमें ये पूछा जाए कि आपने ये 12,000 रुपये किस हिसाब से, किस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से लगाया है, ठीक है, देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, अभी हमने बताया था. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए हमें करना क्या होता है, यही एनुअल डेप्रिसिएशन हम यूज करेंगे. एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय, पहले मैं आपके लिए ये लिख देती हूँ, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एन एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100. सी ये है फॉर्मूला हमें यूज करना है. देयर यू गॉट द रेट ऑफ परसेंटेज, राइट. सो हमारी जो कॉस्ट थी, राइट, कॉस्ट हमने निकाली थी कितनी, 120,000 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, सो देयर यू गॉट 10%. ओके, सो 10%, सी अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो 12,000 ही आ जाएगा ना. सो हमें पता चल गया कि हमने कॉस्ट ऑफ एसेट पे कितने परसेंट से ये डेप्रिसिएशन लगाया है. सो आई होप इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड and you easily understood it. Okay, and one thing also we are considering about like मैं आपको बताना चाहती हूँ एक और चीज़ कि ये जो भी हम, अगर आपसे देखिए ये हमने अभी कैलकुलेट किया फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर. ओके, अगर वो सेकेंड ईयर के लिए भी पूछते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपकी जो कॉस्ट थी 120, राइट, लाइक आपकी फर्स्ट ईयर के एंड पे, फर्स्ट ईयर जब आपने यूज किया इसको तो 1,20,000 थी, उसके बाद आपने 12,000 इसमें डेप्रिसिएशन लगाया, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसकी बुक वैल्यू क्या रह गई आपकी, बुक वैल्यू जो थी आपकी मशीनरी की वो क्या हो गई है आपकी, इसको आप माइनस कर दोगे, व्हाट विल यू गेट, देयर यू गेट
ओके सॉरी, ओके या ठीक है। तो 1,08,000 आपकी जो है वैल्यू रह जाएगी एट द ऑफ सेकेंड ईयर, एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस। एंड देन अगेन आप स्ट्रेट लाइन में तो क्या करोगे, आप डेप्रिसिएशन जब लगा रहे हो तो सेकेंड स्ट्रेट लाइन के हिसाब से आप ऐसे करोगे कि सेकेंड ईयर में भी यही एनुअल डेप्रिसिएशन लगाओगे। ओके, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होती है इसमें, डेट। ठीक है, अगर आप ये 1 अप्रैल को ही खरीद रहे हैं, राइट, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर टू अप टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च, राइट। सो अगर आप पूरे साल कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हो, देयर यू दैट ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर। नेक्स्ट ईयर आप जब 12,000 अगेन आप करते हो तो उसके बाद कितनी वैल्यू रह जाएगी आपकी इसमें, देयर यू गॉट 96,000। ओके, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर again you put the depreciation, right? So again what will you get, 84,000 then, right? So here like this कि आपकी वैल्यू जो है कम होती जाएगी। अगर इन केस आप किसी साल ऐसा होता है कि आप उसको सेल आउट कर रहे हैं उस मशीनरी को, ठीक है, तो उस साल जिस भी डेट पर, सपोज करो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हम इस मशीनरी को सेल कर रहे हैं, ओके, एट द एंड ऑफ वेरी थर्ड ईयर। सो उस दिन हमारी बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट हम क्या काउंट करेंगे, 84,000। ठीक है, सपोज हमें ये 1 लाख की हमारी, नहीं 1 लाख तो नहीं, 90,000 की सपोज करो हमारी ये सेल आउट हो जाती है और डेप्रिसिएशन लगा लगा के हम ऑलरेडी इसकी बुक वैल्यू को 84 तक ला चुके हैं। ओके, तो अब हमारा ये जो 90,000, हमें तो ज़्यादा प्राइस मिल रहा है हमारी, रैदर देन अगर हम 120 से नापते तो 120 से तो हमारे लिए लॉस हो रहा था ये, लेकिन हम तो डेप्रिशिएट ऑलरेडी कर चुके हैं इसको 3 साल तक। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे 6,000 का ये हमें प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट, राइट, दिस इज अ प्रॉफिट ऑन दिस। ओके, सो ये जो है हमें प्रॉफिट जब निकालते हैं हम, जो हम ट्रांसफर करते हैं फिर, तो दैट इज द कि आपको डेप्रिसिएशन अभी तक की माइनस जितना भी यूज कर चुके हैं, ये तो हमारा एंड ऑफ, अगर आप सपोज करो यहाँ पे आप 2.5 साल पे इसको बेच रहे हो, ठीक है, तो 2.5 साल तक इसको यहाँ पे इस साल जब होगा तो 6,000 आधे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो एट दैट टाइम आपकी जो कॉस्ट होगी बुक वैल्यू वो 90,000 होगी। तो ये चीज़ आपको एक सिंपल सी याद रखनी है कि जिस दिन भी आप सेल आउट कर रहे हो उसको, उस दिन तक आपने कितना डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो, कितना डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू को कितना सेट ऑफ कर चुके हो, राइट ऑफ कर चुके हो ड्यू टू यूज, वो आपको कंसिडर जरूर करना है टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन दैट वैल्यू, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस written down value method and we will do the definitely a practical question on that. Thank you for watching.